हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सो मेरा नाम है बेअंत सिंह। सो आप ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। सो अपन इस तो बाद वाइट वाली फॉर्म्स कीतियां, पावर्स कीतियां। सो हुण आपां की करते हैं पोलर फॉर्म बारे डिस्कस करते हैं कि पोलर फॉर्म की होंदी है। सब तो पहले किवें आई आपां देखते हैं पोलर फॉर्म। सब तो पहले तो आपां इहदा आर्टिकल ड्राइव करते हैं। सब तो पहले तो आपां की करते हैं ज्योमैट्रिकली फिगर पढ़ते हैं किसी भी कंपलैक्स नंबर की। जिवें कि मैं कहा अपने कोले 4 क्वाड्रेंट होंदे हैं किसी भी 2D फिगर दे विच। 2D फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 3D ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 8 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2D ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ? 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। इधर की हो जाती है नैगेटिव वाई एक्सिस। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, मैं थोड़ा ਜਿਹਾ डिस्टेंस ओरिजिन तो लैके थोड़ा ਜਿਹਾ डिस्टेंस मूव कर लिया। मान लो मैं एन यूनिट कर लिया तो मैंने मैं स्मॉल एक्स ਨਾਲ रिप्रजेंट करता ਅਤੇ उन्ना ही डिस्टेंस मैं की ਕੀਤਾ अब लैके चला गया ऊपर ਤਾਂ मैं स्मॉल वाई लिखता ਤਾਂ आ भी वाई होगा। ओबवियसली उरों तो लैके उरे तक ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाऊगा। सो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? O, ਇਹਨੂੰ P, ਇਹਨੂੰ M। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕਰਿਆ। ਉਰੇ ਐਕਸ ਹੈ, ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਵਾਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਈਟ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਐਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਚ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਆਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਸਮਾਲ ਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਬਣਾਊਗੀ ਜਿਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈंने? ਥੀਟਾ ਰੱਖਿਆ। मीनस ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਰੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਥੀਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? y। ਸੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? y। ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ? OP। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ, OP ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹ r ਆ ਗਿਆ। r ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ। OP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਕੀ ਕੀਤਾ? cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। cos ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ। ਬੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ r ਹੈ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? r cos ਥੀਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ? x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r cos ਥੀਟਾ। ਜੇ ਮੈਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਐਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ x² + y² r²। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ sin² + cos² ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੁੰਦਾ। sin² ਤੇ ਪਲੱਸ cos² 1 ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਨਾ sin² ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ cos² ਥੀਟਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ y² ਪਲੱਸ x² ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ। ਸੋ r ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? OP ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਮੋਡੂਲਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
आर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर का रूट। ठीक है, तो मॉडुलस की वैल्यू याद रखनी है कि मॉडुलस की वैल्यू इन्नी होती है। हम देखो जी, मैं मान लो मेरे को कोई भी कंपलैक्स नंबर हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी अपने को कंपलैक्स नंबर है, जिमें कि मेरे को एक कंपलैक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 + 4 वाइटा, 3 + 4 वाइटा एक कंपलैक्स नंबर है। मैं तुम कहता है मॉडुलस कढ़ना है, मॉडुलस कढ़ना तो मॉडुलस कि करूँगा मैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर करना है, तो ओबियसली मैं की करूँगा 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर करूँगा, तो मैं लिखूँगा भी जेड का जो मॉडुलस है कितना आ गया 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 आ गया, तो 25 तक कितना आंसर आ गया 5 आ गया। यानी कि जो भी कंपलैक्स नंबर है वह मॉडुलस कितना लिखे आएगा 5 आ गया। बट मॉडुलस तो बाद आप की करांगे ये एंगल्स भी कटांगे। एंगल्स कटन लिए की करना दोबारा ही याद वाली इक्वेशन याद रखनी है थोड़े को वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर की है कॉस थीटा। जो मैं ना दोनों इक्वेशनस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰ, ਦੇਖੋ y ਨੂੰ x ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ y upon x ਆ ਗਿਆ, r ਨਾਲ r ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, sin upon cos ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ tan ਥੀਟਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ tan ਇਨਵਰਸ y upon x। दसो अपने को एंगल की वैल्यू लिखो, इन्हों बोलते हैं आर्गूमेंट, आर्गूमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखने मॉडुलस बोला जाता है, इन्हों बोला जाता है आर्गूमेंट बोला जाता है, या शॉर्टकट लिखते हैं ARG, यानी कि आप थीटे की वैल्यू कढ़नी है। सो अपना कढ़िया थीटे की वैल्यू भी कढ़ ली तो आपने मॉडुलस की वैल्यू भी कढ़ ली, तो यही थीटे के मॉडुलस की वैल्यू की करनी होंगी किसी भी कंपलैक्स नंबर के पुट करनी होंगी है। फॉर एग्जाम्पल जिमें हम एक अपने कोई भी कंपलैक्स नंबर लैट किया है, स्टार्टिंग के उत्ते जिमें कंपलैक्स नंबर लेवा x प्लस वाइटा वाई लवा, एक मेरे को है कंपलैक्स नंबर है। सो मैंने पता है भी मेरे को कंपलैक्स नंबर आ गया, हम x की वैल्यू भी कढ़ी हुई है, मैंने x की वैल्यू कितनी कढ़ी आर कॉस थीटा, y की वैल्यू कितनी कढ़ी आर साइन थीटा। एंड में मैं ये करूँगा पुट करूँगा, तो हम देखो आप ये पुट करते हैं। तो सो एंड आप तुम देखो भी पढ़ के मैं किया सो। सो हम अगे आप करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। देखो आप देखो की करना है, एक्स की वैल्यू है जो उरे पुट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी सी उरे देखो जो एक्स है आप लिखांगे एक्स में आर कॉस थीटा प्लस वाइटा साइन थीटा, जो आर सी मैं कढ़ लिया वह कॉमन कढ़ लिया जेड। तो इतने जो मेरे को थीटे की वैल्यू आऊगी इतों कढ़ के वो आप पुट कर दिया करेंगे, आर की वैल्यू आई से पुट कराया करेंगे। इसमें की कहने आप इसमें आप कहने पोलर फॉर्म, किसी भी कंपलैक्स नंबर की आप पोलर फॉर्म ऐसा लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस वाइटा साइन थीटे का लिखते हैं। थीटे की वैल्यू ये पुट हो जाती है, डिवाइड करके आप एंगल कढ़ लेते हैं। एंगल आप होर तरीके भी कढ़ सकते हैं, जो आप इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आऊगा। तो आप करते हैं हम ये एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं कि किमें पोलर फॉर्म को रिप्रजेंट करना है। तो फस्टली आप देख रहे हैं कि पोलर फॉर्म की एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसी सारा कंसैप्ट थोड़ा हम देखो जो अपने को कोई भी सम है, मान लो अपने को एक जेड कंपलैक्स नंबर है, कोई भी ले लेने 1 माइनस वाइटा, एक कंपलैक्स नंबर है। उन्होंने कहता है कि लिखनी आपने पोलर फॉर्म च कन्वर्ट करना है। तो आप करेंगे सब तो पहले तो जेड की वैल्यू है, आपको पता भी जेड की वैल्यू आप कोई भी कंपलैक्स नंबर है वो अपने हम की लेता सी भी जो एक्स है प्लस वाई की वैल्यू अपने की लेती सी भी जेड इज इक्वल टू कोई कंपलैक्स नंबर एक्स प्लस वाइटा वाई होंगे। तो जेड के आप वैल्यू पुट की आर कॉस थीटा ये साइन थीटा नाल की आ गया वाई तो कॉमन कढ़िया सी, ये अपने आर्टिकल ड्राइव किया, यही आप पहले जेड की वैल्यू ये कंपेरिजन करांगे। तो आप लिखांगे अपने को आर कॉस थीटा प्लस वाइटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस वाइटा। सो आप करांगे हम ये रियल पार्ट तो इमेजिनरी पार्ट की है कंपेरिजन कर लेंगे। हम देखो ये रियल पार्ट आ है, तो मैं लिखूँगा आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ r sin θ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ r ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢ ਲਓ। 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ OIT ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ √2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ cos θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/√2 ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ sin θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/√2, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ r ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ r ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ √2 ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਸੀ r ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √2, ਬਟ cos θ sin θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ sin θ ਸਾਈਨ ਪਾਉਣ cos tan θ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਦੇਖੋ -1/√2 1/√2, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਲ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ -1। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ tan θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ -1 ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀਏ ਵੀ θ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। -1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ tan 45 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 45 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ π/4 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ tan ਨਾਲ tan ਤੋਂ ਆਪਾਂ θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢ ਲਈ -π/4। ਸੋ θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖ ਲਈ √2 ਲਿਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √2 cos -π/4 प्लस कोएटा साइन -π/2, ठीक है। तो ये की आ गया अपनी एक पोलर फॉर्म आ गई। तो आप कोई पोलर फॉर्म इदा कट सकते हैं। हम देखो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ θ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ tan ਇਨਵਰਸ y/x। ਹੁਣ tan ਇਨਵਰਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ y ਕੀ ਹੈ ਤੇ x ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, x ਕਿੰਨਾ 1 है तो मुझे 1 पुट करता, y कितना मेरे को -1 है, वाइटा नहीं है -1 का कोफिशिएंट लेके चलना है। तो ये कितना आ गया -1। ये वैल्यू फिर उन्नी होंगी है कितनी होंगी -π/4 होंगी है। tan -1 आ गया तो कितनी होगी -π/4 वैल्यू होगी। एक तरीका ये है एंगल फाइंड करने का, ठीक है। आप cos θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨਾਲ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਨੂੰ ਇਮੈਜਨਰੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਐਂਗਲ ਦੀ। ਇਹੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो ये तुम्हें याद की रखना है, अपन पहली वैल्यू सी sin θ की जो वैल्यू आई सी अपन पता -1/√2 आई है। इधर तक तो सम सेम ही है। cos θ की वैल्यू कितनी आई है 1/√2। sin θ की वैल्यू पता है, cos θ की वैल्यू पता है। अपन की करना है, अपन पता भी जो sin θ 1/√2 है cos θ 1/√2 होंगे ये कितने डिग्री से होंगे, तो ये अपन पता भी 45 डिग्री से होंगे। बट आप माइनस साइन की करते हैं इग्नोर करते हैं, ठीक है। इस माइनस साइन को इग्नोर करना होंगे। बट उदू पहला की है थोड़ा एक रूल सीखना पऊगा भी इसका एंगल किमें कटना। तो रूल की है देखो, आपने 4 कोआर्डिनेट पढ़े हैं। मान लो मैं उपरली साइड एंगल लेके चल रहा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा आ एंगल कितना है ठीक है, तो मैं ये एंगल अल्फा लेके चल रहा कि मेरा एंगल की है अल्फा है। पर जो मैं नीचे जाऊँगा तो मेरा एंगल की होगा नैगेटिव। वो भी जो मैं नैक्सट शिफ्ट करूँगा आ वाले तो मैं पता भी मेरा एंगल 0 डिग्री है, आ वाला मेरा एंगल कितना 90 डिग्री, आ कि 180 डिग्री, ये कि 270 डिग्री है, तो ये कि 360 डिग्री है। क्योंकि आप 90 प्लस करी जाने तो अपने को कोआर्डिनेट बन जाते ट्रिग्नोमैट्री आप करा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ 90 ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ π/2 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਡੀਅੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਡੀਅੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅੰਟ 'ਚ। ਰੇਡੀਅੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ अल्फा होंगे। हाँ एंगल पाई है, जहाँ पाई भी कह सकते हैं
ਵੀ ਆਹ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, प्लस हो गया। बट अपन ये लोड़ नहीं, अपन सिर्फ 4 चीज़ें याद रखने ने एंगल कटन के लिए। पाई माइनस अल्फा हूँ उन्हें जे आ एंगल पॉजिटिव से आ एंगल की सी नैगेटिव सी, जे आ पॉजिटिव है तो इतने की हो जाए ये नैगेटिव हो जाऊगा। नैगेटिव होने के लिए देखो तो आप पाई माइनस का हो जू, अल्फा का हो जाऊगा प्लस का, तो मैं लिखूँगा अल्फा माइनस पाई। तो थोड़ा आ चीज़ें याद होनी चाहिए एंगल कटन के। जे पहला एंगल मेरा पाई अल्फा है तो एंटी क्लॉकवाइज की हो जाऊगा वो नैगेटिव हो जाऊगा। ये एंगल पाई माइनस अल्फा होगा, ਇਹਦਾ नैगेटिव की होगा अल्फा माइनस पाई। तो थोड़ा याद रखना बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री करा आप। हूँ 4 याद रखने जी, फस्ट क्वाड्रेंट है, आ सैकेंड है, आ थर्ड है, आ की है फोर्थ है। तो हम देखो ये हिसाब के आप एंगल कटने हैं, मतलब कि आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये तरीका भी बहुत वधिया है। तो हम आप की करा, देखो इनू करने के लिए बेसिकली देखो हम मैंने पता भी आ मेरा एक कंपलैक्स नंबर सी सी है 1 माइनस कोएटा। तो मैंने नहीं पता भी इनू की लिखूँगा मैं एक्स, इनू की लिखूँगा कोएटा वाई। तो इतों एक गल पता लगी एक्स मेरा पॉजिटिव है, वाई की है मेरा नैगेटिव है। तो देखो हम एक्स पॉजिटिव है तो वाई मेरा नैगेटिव है। जे एक्स मेरा पॉजिटिव है वाई मेरा नैगेटिव है, तो किहड़े क्वाड्रेंट चलाई करता है, फोर्थ चलाई करता है। तो एक्स मेरा पॉजिटिव है, वाई का मेरा नैगेटिव है, तो की चलाई कर गया ये फोर्थ चलाई कर गया। फोर्थ च की होंगे माइनस अल्फा। हम अल्फा की है इतों माइनस याद रखना भी साइन थीटा इन्ना, ये दोनों की वैल्यू तुसीं की करनी है एवं देखो 1/√2 1/√2 माइनस साइन को आप इग्नोर करना है। तो आप सीधा लिख सकते हैं भी कोई भी लैट कर लिया अज्यूम भी अल्फा जो इन्होंने 45 डिग्री है, क्योंकि 45 डिग्री तो दोनों ही किन्ने होंगे ने 1/√2 होंगे है। पर एक्चुअली ये लाइव की कर रहे हैं चौथे की होंगे माइनस अल्फा। इट मीन जो मेरा एक्चुअल एंगल निकलना है, थीटा निकलना है, वो माइनस अल्फा होगा -π/4। तो सीधे मेरे को एंगल निकल होंगे, ठीक है ना। तो जो कोई आ सारे वैल्यूज ने की वैल्यू ने एंगल दी वैल्यू ने जो आर्गूमेंट आप पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें याद रखना है, ठीक है। कोई भी एंगल होंगे देखो जो आप ए गल करते मान लो ये थर्ड चलाई करता तो मैं एक्स भी नैगेटिव करना पैंदा, वाई भी नैगेटिव करना पैंदा। मान लो ये भी नैगेटिव करता मैंने, हूँ एक्स भी नैगेटिव है वाई भी नैगेटिव है, एक्स भी नैगेटिव है वाई भी नैगेटिव है। की चलाई करता थर्ड च अल्फा माइनस पाई हो जाता, ठीक है। मान लो ये π/4 सी, ये थर्ड च की हो जाता फिर एंगल मेरे को देखो अल्फा माइनस पाई, क्योंकि अल्फा की है पॉजिटिव है। तो आप पहला अल्फा माइनस पाई लिख दे। अल्फा कितना मेरा π/4 है माइनस पाई, तो कितना आंसर आ गया π4 - 3 कितना निकला है -3π/4 आंसर निकला है थीटे का। तो तुमने आही याद रखना है, पहले चीज़ अल्फा तो अल्फा ही रखना, चौथे च तो नैगेटिव कर देना है, पाई माइनस अल्फा एच करना है, अल्फा माइनस पाई एच कर देना है। सारे एंगल ने आर्गूमेंट है, या सीधा लिख सकते हो थीटा = tan इनवर्स y/x, ठीक है। ये उत्थे यूज होगा जिथे थोड़िया वैल्यूज निकल, मतलब कि कई बार की होंगे इतों डिवाइड करके tan थीटा की वैल्यू नहीं निकल होंगी, कई बार 3/5 आ गया तो आप वैल्यू नहीं कट सकते, ठीक है ना। तो इन्होंने थोड़ा याद रखना। तो ऐसा आप कोई भी पोलर फॉर्म है किसी भी कंपलैक्स नंबर की रिप्रजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े इन्नी गल याद रखनी है। सो आप नैक्सट टॉपिक है जो अगे करांगे। धन्यवाद।